Hello aspirants, I am Ritesh Shukla and I am here with UPSC essay paper. I do believe that every aspirant who has appeared for the mains examination, for the UPSC examination, I do believe that you had your fair chance of appearing for the essay paper, and I do believe after seeing the paper, I would say that it was a tough paper because I'm going to do the analysis later on. I will be speaking on each and every topic and make you understand that what all things should have been said about the statements. But I would say that overall that essay paper was tough, and all the section A part and section B part, according to the earlier precedents, it had to be the some portion of section B should have been of GS portion, but unfortunately both the sections topic are in some sense of related to non-fiction, and all the topics that I could see in the essay paper that were majorly of philosophical format. So if you are a student of philosophy, if you are a student of political science, if you are a student of sociology, I believe that you would be knowing all these topics and you would be able to write it as it is. Also, you will be able to give your own opinion on various thoughts and theories, whatever has been put out in the political science and sociology's papers. But if you are not with the background of philosophy or political science, or any humanity background, I would say that would these paper would be tough for you, and you would write a very general essay as far the topics are concerned. So I will get on to the topics and I will try to know that what exactly those topics were, and what exactly the answer should be for topics that has been mentioned. All right, so I will be continuing from here. So I'll be starting with the section A, and the first topic that we have here is, let me take the pen. Yeah. Okay, so the first essay topic, or the first section, that the topic which was of the section A was the process of self discovery has now been technologically outsourced. Okay, so first of all, you'll have to read the topic again and again, because it is not going to give you any kind of hint whether what should be written in it, because the process of self discovery, until this particular part, if you can see this particular part, the process of self discovery means knowing yourself and understanding what you exactly are, and that is on the basis of a personality and an individual personality. Knowing the individual personality, that is what this overall process is related to about. And the process of self discovery, this specific statement wants you to make understand that there are many things that we have, but we need to make ourselves, introduce ourselves in a certain manner that could make us be understandable to the other person. So that is the process of self discovery, knowing yourself, and how knowing yourself has now been technologically outsourced, how it has been outsourced, which means that there are many things. Say for example, from the beginning of the age that we have, from then itself we are taught in schools, then thereafter we get out of that, we get into college, then again we get our master's degree. In all these processes we are taught by many teachers, many senior people, many professors, college professors. So in that sphere, now technology is playing a bigger role. Why? Because there are many smartphones or many tablets or many type of gadgets are available, which gives you information at a very cheaper rate, and also it is available to each and every individual. So the process of self discovery has now been technologically outsourced, means that you'll have to make the writing should be, the essay should be revolving around how technologically we are discovering ourselves, even if certain kind of teacher is not available to us. So in actuality, actually the tablets or smartphones or other types of gadgets, all these things are providing us information, and through those information we are
discovering ourselves. That is the overall motto of this particular essay. So what exactly are you going to write in this particular topic? The first thing which I have said is the process of self discovery. Many a times education is thought to be in our country, education is thought to be a process where one would complete a degree and get a job, but that is not the overall goal of getting education. The overall goal of getting education is that you need to understand in an intellectual manner, and when you understand in an intellectual manner, you get to know who you are. Once you get to know who you are, you understand that there are many things that I could explain, there are many things that I can come up with, I can create, and all those creation or making up of things is what actually self discovery really means. All right, so that has to be explained in the first part. Thereafter you will have to just connect those things with the technologically outsourced. कैसे आउटसोर्स जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे ऑटोमेटिकली आउटसोर्स कर दिया गया है, क्योंकि अगर 2000 के आसपास अगर हम देखते हैं, 2005 के भी अगर आसपास हम देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी खास करके इंडिया में तो अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाती है तो उससे कैसे हम अपने आप को ज़्यादा एनहेंस कर पाते हैं, कैसे अपने आप को ज़्यादा सिखा पाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे, दैट इज द मेन थिंग दैट हैज टू बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली more of non-fiction, and if you can find quotes, I wouldn't have written quotes in this particular topic, लेकिन अगर आपको quote मिल जाते हैं, अगर आप कहीं से quotes recognize कर पाते हैं, you can definitely write it, because quotes लिखने के बाद आप उस पे 4-5 statements explanation के भी दे सकते हैं, तो that will be very much helpful as far as this topic is concerned. All right, the second topic, the second essay is your perception of me is a reflection of you, my reaction to you in an awareness of me. All right, तो ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट है, इसका अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप आखिरकार इसको कैसे बेस्ट प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो एक लिटरेचर से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को या तो किसी कोर्ट में यूज किया जा सकता है, या फिर इसको प्रेजेंट करके ये डिपिक्ट किया जा सकता है कि ह्यूमन बिहेवियर आखिरकार कैसा हो सकता है। तो योर परसेप्शन, इट इज टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, और आपका जो परसेप्शन है, इफ योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, आप कैसे मुझे परसीव करते हैं। देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन है वो ये सेकंड पर्सन से कहना चाह रहा है कि आपका जो भी परसेप्शन है मेरे बारे में, वो आपका जो व्यक्तित्व है उसको रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट यू आर परसीविंग अबाउट मी, दैट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर, यानी कि सेकंड पर्सन की जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, वो दर्शाता है। फिर आगे पर है माई रिएक्शन टू यू इन एन अवेयरनेस ऑफ मी। अब मेरा जो रिएक्शन है आपके प्रति, वो जो है मेरी जागरूकता है वो बताती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच एक कन्वर्सेशन में ये जो फर्स्ट पर्सन है वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप परसीव कर रहे हैं एक्चुअली दैट इज ऑल्सो शोइंग व्हाट यू आर। आपका कैरेक्टर भी बताता है, आपका भी बिहेवियर बताता है, और मेरा जो रिएक्शन है, माई रिएक्शन टू यू इन एन अवेयरनेस ऑफ मी। ठीक है, मेरा जो रिएक्शन है वो भी मेरी जागरूकता के हिसाब से ही आपको दिखाई देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट परसीविंग फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन एंड। ये जो है ओवरऑल स्टेटमेंट है, इसमें अगर आपको आंसर पुट आउट करना है तो आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन एक्सप्रेशंस के बारे में, वो एक्सप्रेशंस कैसे नेगेटिव हो जाते हैं सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए, या वो जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। दैट इज व्हाट दिस ओवरऑल टॉपिक इज वांटिंग। ऑलराइट, तो सेकंड जो थर्ड टॉपिक है वो है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ चिमेरा। ऑलराइट, वांटलेसनेस इज यूटोपियन। यूटोपिया मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ल्ड जहां जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट इट कुड बी अ परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा खुद का एक ओवरऑल वर्ल्ड होगा जिसमें कि बहुत सारी चीजें मैं इमेजिन करता हूंगा, और उस वर्ल्ड में सारी चीजें हो सकता है मेरे अनुसार बहुत अच्छी हो। दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। मे बी क्योंकि वर्ल्ड में और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वजह से ऐसा यूटोपियन वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
लेकिन यहां पर ये कहना है कि फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, ये समझना कि कोई डिजायर ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, व्हाई वुड वन वांट टू एग्जिस्ट, even if that particular thought is coming into the mind of the people, even the wantlessness is not a utopian philosophy, because डिजायर और डिमांड जो है उसको इसलिए रखा जाता है ताकि क्यूरियसनेस को हमेशा एक आंसर दिया जा सके। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग थिंग्स, व्हाई? बिकॉज द क्यूरियोसिटी ऑफ नोइंग what life is, why the existence of life is there, why there are many things which are related to existence, why the universe is there, why the solar system, how these things have been formed, इसका जो क्यूरियसनेस है that is what wanting us to get going, and इसकी वजह से ह्यूमन रेस जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। इट इज अ प्रोग्रेसिव रेस, और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, इसकी वजह से ह्यूमन रेस इज प्रोग्रेसिंग। ऑलराइट, अब ये सेकंड स्टेटमेंट है, while materialism is a chimera. Chimera means it is actually a Greek, a monster, and this monster is has the power of doing everything, almost everything. It is a humongous monster, और इसमें जो है आग फेंकने की भी शक्ति होती है, उड़ने की भी शक्ति होती है, बहुत जो है बड़ा ऐसा दिखने में होता है दानव जैसा। तो ये जो while materialism is a chimera, chimera कहने का मतलब है कि मेटेरियलिज्म यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, अगर कोई संसाधन की वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति अगर अपना लेता है अपने पास में, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति या फिर बहुत वेल्थ हो गया है, बट इन एक्चुअलिटी दोज वेल्थ एंड दोज जो भी वो संसाधन है, दैट इज ओनली रिड्यूसिंग द क्यूरियोसिटी पार्ट, एंड अल्टीमेटली बोथ द थियरी दैट इज फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस एंड द मटेरियलिज्म इज चिमेरा, दोनों ही चीजें एक्चुअली क्यूरियोसिटी को कम करती हैं और उसकी वजह से जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन रेस है उसको खत्म करती हैं। तो बोथ दीज फिलोसफीज, या तो फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन, यूटोपियन कहने का मतलब है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यदि आपको ऐसा फील होता है कि यू आर कंप्लीटली आइडल, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, इवन दैट इज a hurdle in the progressiveness of human race, whereas materialism is chimera if the materialism is also making other person to दूसरे व्यक्ति को ये दिखा रहा है कि बहुत ही ज्यादा वेल्थ होने के कारण आपको जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इवन दैट थिंग इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव ह्यूमन रेस। तो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर बहुत वेल्थ हो जाए तब, या फिर आप बिल्कुल भी आइडल हैं तब, दोनों ही सिचुएशंस में इफ you are not curious about how the human race is going to be in the future, how the life has existed, how other things have existed, so it will be completely futile in saying why a person need to live, ठीक है, in both the situations, ठीक है। Now about the fourth one, the real is rational and the rational is real. Now this is the statement that has been made by Hegel. बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो भी पॉलिटिकल साइंस या फिर PSIR ऑप्शनल जिसका होगा, या फिर सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल होगा, या फिर फिलॉसफी अगर ऑप्शनल है तो ये जो सोशियोलॉजी भी इवन, तो ये जो ऑप्शनल पेपर्स जिनका भी होगा, जो ये जानते होंगे वो हेगल के स्टेटमेंट्स के बारे में जानते होंगे। इवन द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडी ह्यूमैनिटीज इन 12th स्टैंडर्ड, they might be knowing about Hegel. Hegel is actually an idealist, और प्लूटो जैसा ही, प्लूटो भी एक आइडल ही है, ठीक है। इनके भी ये थॉट प्रोसेस पूरे जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे प्लूटो की थॉट थियरी है, उसी प्रकार से हीगल की भी थियरी है, और हीगल के अनुसार ये कहना है कि द रियल इज रैशनल वेयरएज रैशनल इज रियल, यानी कि जो भी आप तत्व आप अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से परसीव कर सकते हैं, अपनी आंखों से छू सकते हैं, समझ सकते हैं, वही एक्चुअली में रैशनल है, यानी तार्किक है, और रैशनल इज रियल, और जो भी तार्किक है वही सत्य है। ये जो है हीगल का कहना है, और हीगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था स्टेट में, क्योंकि उनके अनुसार अगर स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए और एक आइडियलिस्ट पर्सन को वहां एस्टैब्लिश किया जाए, तो ओवरऑल जो रूलिंग होगी वो जो है काफी परफेक्ट हो सकती है। ये हीगल का कहना था। लेकिन एक लॉन्ग सिचुएशन में, लॉन्ग टर्म में दिस में नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो भी आप आंखों से देखते हैं, आप जो भी आप परसीव करते हैं,
that may be true at certain circumstances, may not be at other circumstances, whereas a consolidation of a state could also become obsolete. ऑलराइट, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हेगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वेरएस अपने थॉट प्रोसेस उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कैसे जो रियल है उसको पूरी तरह से वैलिडेट नहीं किया जा सकता. वैलिडेशन हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ लिमिट एंड दैट कैन ओनली बी डन विद इन अ सर्टेन लिमिटेशन. ठीक है, हर चीज जो कि आपने एक थियोरी में पढ़ रखी है उसका पूरी तरह से वैलिडेट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा उसका क्रिटिसिज्म भी होगा ही इन द ट्रू वर्ल्ड. ऑलराइट, नाउ वी विल बी गेटिंग टू दी सेक्शन बी. सेक्शन बी लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, दोज आर ऑल्सो कंप्लीटली ऑफ नॉन फिक्शन टाइप, या आपको अच्छी खासी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इनको भी लिख पाते. नाउ दिस इज हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली में वॉलेस की एक पोएम है, उसमें बताई गई है, और ये वॉलेस की पोएम में ये बताया गया है कि हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, जो भी क्रेडल को बनाता है, जो भी जो है क्रिएशन करता है किसी एक वस्तु का, वही जो वस्तु होती है वही पॉसिबली लिविंग बीइंग के बारे में कहा गया है. ये मदर और चाइल्ड के रिलेशन के बीच में बारे में बताया गया है, और ये कहना है कि अगर मदर ने बच्चे को बनाया है और अच्छा खासा जो है रूल उसको अच्छा खासा परवरिश किया है या कुछ किया है, तो वो ही आखिर आगे जाकर विश्व में रूलिंग करते हैं. ठीक है, ये लगभग सारे ही लोगों के लिए है, और ये मदर और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप और ओवरऑल जो चाइल्ड है मदर के लीडरशिप या फिर मोटिवेशन या फिर जो इमोशन है उसकी वजह से फाइनली चाइल्ड जो है वो आगे बढ़ के आगे जाके वर्ल्ड को संभालता है. तो ये जो है ओवरऑल नोशन है. तो अगर आपने वॉलेस के बारे में सुना होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एसे ऑन दिस, और इसके में आपको काफी सारा स्टेटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप को आप एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता सकते हैं. जो बॉडी पार्ट है आप वहां पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो रूल करना है उसमें कितने सारी इमोशंस या फिर कितने सारी लीडरशिप क्वालिटीज मदर से जो चाइल्ड में आती हैं वो हेल्प करती हैं. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल स्टेटमेंट दैट यू कैन पुट आउट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ द सिक्स्थ पार्ट, I'm really sorry for the section B. The sixth question was what is research but a blind date with knowledge. तो अब आपने अभी तक की जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो आप समझ चुके होंगे. इवन जीएस की प्रिपरेशन में आप जो है कई स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च में लग जाते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे थियरीज पढ़ लेते हैं, इवन देन दे आर अनेबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो उसे ही रिसर्च करते हैं, आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो आपका पर्पस है फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स यू मे नॉट बी एबल टू डू इट. So that has to be stopped as far as an aspirant is concerned, and who especially for those aspirant who are aspiring for IAS, क्योंकि उसमें ईयर खप जाता है, पूरा का पूरा ईयर भी खत्म होता है और उसमें आपको डिग्री भी नहीं मिलती है, जो कि इवेंचुअली जो रिसर्च एक्चुअली में करते हैं पीएचडी होल्डर या फिर कोई और डॉक्टरल होल्डर, वो जो है रिसर्च करते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक डिग्री भी मिल जाती है, जिससे कि वो आगे करियर में उनको ग्रोथ भी मिलता है. तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है, ये जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज. आप रिसर्च में बहुत सारी चीजें तो समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली दैट substantive thing that you have known can only be added for a particular juncture, but as a whole you may not be going on to a particular point. ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एविडेंस के बारे में, हो सकता है कि जो भी नॉलेज आपने गैदर किया दैट कुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर एविडेंस, लेकिन अगर आपने ये सारी जो गैदरिंग डेटा की जो गैदरिंग की है वो एक कंक्लूसिव रिजल्ट की ओर नहीं जाता है, देन दैट रिसर्च इज अ फेल. तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड दैट व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज. ऑलराइट, जैसे कि स्ट्रिंग थियरी है, इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे सपोर्टिव थीसिस, बहुत सारी चीजें बताई गई स्ट्रिंग थियरी के बारे में, लेकिन क्योंकि इसका कंक्लूसिव पार्ट कंप्लीटली एब्सेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें इनसे भर के निकली हैं, दोज कुड बी हेल्पफुल फॉर अदर थियरीज, लेकिन इवेंचुअली स्ट्रिंग थियरी इज नॉट अ कंप्लीट थियरी एज अ होल. ऑलराइट, अब दूसरा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फास्ट. अब ये जो स्टेटमेंट है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था. ब्रिटिश म्यूजियम में इन्होंने अपने भाषण में कहा था जब वो लेबर्स को एड्रेस कर रहे थे. तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास जो अपने आप को दोहराता है,
पहले तो एक ट्रेजेडी ही दिखाई देती है, पहले तो हम देखते हैं कि एज अ ट्रेजेडी दैट इज हैपनिंग, लेकिन दूसरी बार जो होता है दैट इज अ जोक। अगर हिस्ट्री कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है then for the second time it is not a tragedy but actually it is a joke. Why would it be joke? क्योंकि जो पहली बार एज अ ट्रेजेडी अगर कुछ अकर किया है तो उसके वजह से आपने आखिरकार उस ट्रेजेडी से कुछ सीखा नहीं, और अगर आपने सीखा नहीं और फिर से अगर दोहराया इतिहास में की हुई गलतियों को, देन इवेंचुअली दैट व्हाट विल हैपन, देन जो ऐसी गलतियां होंगी उससे आप फिर से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे गलतियों की वजह से वो आपको सामने दिखाई देंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है, या मार्क्स ने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट को बताते हुए आप ये बता सकते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीपीईसी का ही एग्जांपल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पाकिस्तान ने सीपीईसी को ये बता दिया था कि जो एरिया है पीओके का, वहां से वो अपने जो है एरिया बना सकते हैं सीपीईसी का। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जब जो ये कॉरिडोर बनने लगा और जो इंडस्ट्रीज या फिर सर्टेन प्लेसेस पे जो इंडस्ट्रीज बैठाने गए, तो वहां पर जो चाइनीज ऑक्यूपेंट्स थे वो लोकल लोगों को वहां पर मार पीट के या फिर डरा धमका के वहां से उनको खाली कराने लगे। तो क्या हुआ आखिरकार, जो पहले ऐसा होता था, ऐसे दिखाई दे रहा था कि चाइना जो है अपनी हेजेमनी रूलिंग करती है जगह जगह पर, उसको पाकिस्तान हो सकता है कि नहीं विश्वास मानते थे और उन्होंने उनको जगह दे दिया। और भले ही हिस्ट्री में बहुत सारी ट्रेजेडीज चाइना की उन्होंने देखी हो, लेकिन बाद में सीपीईसी का एक सिचुएशन क्रिएट करके चाइना को यहाँ बुला लिया और इवेंचुअली आखिरकार वही ट्रेजेडी पाकिस्तान के भी साथ हो रही है। तो दैट एग्जाम्पल कैन बी पुट आउट हियर वेयर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फास्ट। इसमें जो है इस एग्जांपल को हम फिट कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 1789 का रेवोल्यूशन था, रॉबस्पियर खुद जो है रेवोल्यूशन लीड कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन रॉबस्पियर को ही गुलिटून कर दिया गया था। तो दिस इज ऑल्सो अ एग्जांपल दैट कुड बी शोन हियर। ठीक है, अब जो लास्ट है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये क्या होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रैक्टिस को एक सेट रूल मान लिया जाता है कि हम जो है इस प्रकार से काम करते हैं, हमारा इस प्रकार प्रोसीजर है। और जब ये प्रोसीजर को कंप्लीटली स्टैब्लिश किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो लीडर्स होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो उस प्रैक्टिस के आगे कुछ सोचने के बजाय केवल उस बेस्ट प्रैक्टिस पर ही ध्यान देते हैं। अब इस बेस्ट प्रैक्टिस को ध्यान देने के वजह से वी लूज ऑन दी बेटर थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन, अगर हम उसमें थोड़ा और एफर्ट लगाते या थोड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते। तो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर ऑलरेडी देयर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट you don't have to emphasize only on best practices. Best practices can yield you many results, but if you are wanting to look out of the box, you want to know many things other than the best practices that has already been exercised in an organization, then that particular thought will become another best practice. तो यानी कि जो थॉट प्रोसेस है ह्यूमन का, उसको हमेशा अलाइव रखने के लिए जगह जगह पर ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अगर कोई एक सर्टेन रूल्स को ही आप ये समझ लेते हैं कि यही अब एक लिमिट है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यानी कि हमेशा लिबरेशन से काम करना चाहिए और माइंड को बिल्कुल खुला रखना चाहिए, जिससे कि आप और भी ज्यादा प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर सके। कोई एक सेट ऑफ रूल्स पे ही जो है कंप्लीटली बाउंड ना हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये बता सकते हैं कि व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट एग्जैक्टली बेस्ट प्रैक्टिसेस डिनोट, और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस के कुछ सर्टेन एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है एक सर्टेन सिचुएशन से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि अगर उन्होंने कोई स्टॉक्स में कोई स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि इतने ही स्टॉक्स हम जो है बोरो करते हैं, उसके अलावा बोरो नहीं करते, तो वो कोई भी रिस्ट्रिक्टिंग चीजें शुरू ही नहीं करेंगे। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट अ कॉर्पोरेट वुड एक्सरसाइज। ऑलराइट, अब ये जो एक्सरसाइज है उसको अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए तो वहां पे रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको काफी बढ़ाई जानी चाहिए, जो कि ज्यादातर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस नहीं करते। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये बता सकते हैं, साथ ही साथ ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ द कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस वर्क। इवन जो है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप बता सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है, जो लिमिटेशन है उसको कैसे टो करते हैं सारे इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें बताने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज द मेन थिंग दैट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस और इवन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और कम्युनिटी। ऑलराइट, तो इससे आप जो है कंक्लूड करके ओवरऑल इन टॉपिक्स को
अच्छा खासा एड्रेस कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो ओवरऑल ऐसे है उसमें ज्यादातर जो स्टेटमेंट्स हिस्ट्री में पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा दिया गया है, थियरीज द्वारा दिया गया है, उनके ही बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हीगल के बारे में, हीगल ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके वहाँ उनका स्टेटमेंट स्पेसिफिकली यहाँ दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है, वॉलेस का स्टेटमेंट दिया हुआ, वो तो पोएट थे। तो ये जो लीडर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस यहाँ दिए हुए हैं। आप क्लियरली पॉलिटिकल साइंस की ही कंप्लीट थियरी इसमें पुट नहीं कर सकते, कंप्लीटली सोशियोलॉजी की थियरी पुट नहीं कर सकते, कंप्लीटली अगर सोशियोलॉजी है तो उसकी थियरी कंप्लीटली पुट नहीं कर सकते, आपको अपने ओपिनियन देने हैं उन थियरीज पर, देन ओनली दिस ओवरऑल आंसर विल बी कंप्लीट। एंड इवेंचुअली इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 125 मार्क, इफ यू पुट आउट द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट इन अ सीक्वेंस मैनर, और उस बॉडी में अगर आपने थियरी के साथ साथ अपनी ओपिनियन भी दी हुई है, देन डेफिनेटली यू विल बी at least getting 70 marks for one essay. I am quite sure of that. All right, so overall paper तो it was tough for all those people who were appearing for the first time, because ये जो है बहुत ही आसान नहीं था, but we'll hope for the best and we'll be continuing with these videos. अब GS 1-2 का पेपर है कल और GS 3-4 का है, तो I would say all the best to all the mains appearing students. और बाकी जो 2-4 पेपर हैं GS के, उसके भी हम वीडियोस जो है मोस्ट प्रोबेबली अपलोड करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।